दिखा दे एक बार है। आवाज चेक कर लो। दिखा दे एक बार है। आवाज चेक कर लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੁਲੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਧੁਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਜੋ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ YouTube ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੁਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੁਲੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਧੁਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ है दारा बरनाले वाला, और गुरुद्वारा साहब जी धुलिया के बैक साइड खड़ा होकर और दरबार को दिखा रहा है। तो उसमें झूठ वो क्या बोल रहा है कि मास्टर माइंड रणबीर सिंह, जिसने बाबा धीरज सिंह जी का कत्ल करवाया है, तो उस मास्टर माइंड रणबीर सिंह ने बाबा जी का जो सेवादार था, उसने ये बंदे को हायर किया, हायर करवा के सब जे बाबा जी का कातल करवा दिया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि संगत को इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं परिवार तो ये बोल सकता है कि कोई नहीं जी अभी चुप रह जाइए, लेकिन संगत और हम चुप रहने वालों में से नहीं है। जिस पापी ने ये पाप कर्म किया वो तो जेल दुलिया में बंद है अभी, और जो पापी ये बाहर है, दारा बरनाले वाला, जो भी गुरुद्वारा दुलिया का जबरदस्ती प्रमुख बनकर बैठा है, ना तो उसने सिख पंथ ने को स्वीकार किया है, ना सिख जथेबंदियों ने उसको स्वीकार किया है, और ना श्री अकाल तख्त साहब ने उसको स्वीकार किया है, और वो कभी करेंगे भी नहीं। क्योंकि जो हमारी जथेबंदी है, जो हमारी मर्यादा है गुरु घर की या सिख जथेबंदियों की, झूठे बंदे को तो वो कभी मुंह लगाते ही नहीं। और ये तो एक नंबर का झूठा आप सभी संगत देख ही रहे हैं। तो पहले मैं मीडिया में इसके लिए नहीं आना चाहता था क्यों गुरुद्वारा साहब जी धुलिया से सभी संगत की आस्था बहुत जुड़ी हुई है, और मैं इसको जो होना था ठीक है 18 को हो गया, कोई बात नहीं। मैं शांत बैठा रहा कि नहीं गुरुद्वारा साहब की बदनामी ना हो, संगत जुड़ी रहे, कोई बात नहीं। पर उसके बाद में इसने भूपेंद्र सिंह ने, दारा सिंह ने, उसका एक अनमोल जवाई है टर्बन किंग करके फेसबुक आईडी है उसकी, हाँ, उस बंदे ने जितने भी आज से पहले मेरे खिलाफ पोस्टें डाली हुई थी ना, सब के सब अपनी आईडियों में से डिलीट कर गए। क्योंकि वो पोस्टें उनके पास वो पोस्ट में सच नहीं था। वो कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने पोस्टें बनाई गई, और वो फिर उसको संगत को दिखाया गया। अगर भाई तुम इतने सच्चे थे ना, तो फिर वो पोस्टों को डिलीट क्यों करते? अगर रणबीर झूठा था, मास्टरमाइंड था, रणबीर कातिल था, तो फिर वो उसको रहने देते। पहले आप पोस्टें डालते हैं, फिर पोस्टों को डिलीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप झूठे हैं, इसके लिए आपके मन में झूठ है, सच नहीं है। और दूसरा संगत जी दारा बोल रहा था कि मास्टरमाइंड रणबीर सिंह, जिसने उस बंदे को हायर किया, बाबाई का कातल करवाया। संगत भी चाहती है कि कातल तो पकड़ा गया, उसके पीछे किसने करवाया वो पकड़ा जाना चाहिए। अगर रणबीर ने करवाया है, तुम बोल रहे हैं, तो भाई ठीक है, तो उसको सीआईडी हमारी धुलिया की ही जांच कर रही है स्टेट लेवल से। तो उसको अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है रणबीर सिंह के खिलाफ, तो वो सीआईडी ऑफिसर को दीजिए। रणबीर सिंह बाहर क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपके पास में कुछ ही नहीं है। सिर्फ आपको संगत को झूठ बोलकर, संगत को किसी भी तरीके से आप अपने शरीर से जोड़ना चाहते हैं। अपनी मान मर्यादा को या प्रतिष्ठा को, जिन लोगों को भूख होती है ना, वो लोग ज्यादातर मीडिया में, ज्यादातर फोटो में आगे आगे फोटो खिंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो उनमें से एक दारा सिंह भी है, उसका जीजा भूपेंद्र सिंह पातड़ा वाला है, उसका जवाई है मंगत सिंह शेरे पंजाब जुग्गी, इंद्रप्रीत सिंह सेठी जुग्गी,
जिसके पास में गुरुद्वारा धुलिया का इमामत के तौर पे संत बाबा धीरज सिंह जी ने 1.25 करोड़ 1,26,00,000 रुपया रखा था। और जो मंगत सिंह हरवंश सिंह चावला शेरे पंजाब होटल वाले जो अग्रवाल नगर धुलिया में रहते हैं, वो किलो 401 ग्राम गोल्ड दवाई बैठे हैं। क्योंकि उनका अगर रणबीर धुलिया में रहता तो उनका ये जो उनके काले कारनामे है ना, वो संगत के सामने नहीं आने थे। हैं जी, सच कभी छुप के नहीं रहता, आज भी उजागर हो जाता है, कल भी उजागर हो जाता है। कलयुग का टाइम है, ठीक है भी, कुछ टाइम के लिए कलयुग चलता है, पर सतयुग है, शुरुआत तो सतयुग से होती है ना, और सतयुग पे ही सब सिस्टम को खत्म होना है, संसार को भी खत्म होके फिर सतयुग आना है। तो आपका कहीं ना कहीं जो भी आप झूठ बोल रहे हैं ना, संगत को सब पता है, संगत को आप गुमराह कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं, जो हमारी बीबियां माइयां बहनों बच्चे जहां आदमी लोग हैं, वो सच और झूठ के बारे में जानना क्यों नहीं चाहते? या तो वो बहुत कुछ जानते हुए भी चुप हैं, या फिर उनको अपनी हैसियत कह लो या अपनी पढ़ाई लिखाई पे उनको कुछ भरोसा नहीं है। जो टीचर होता है ना, वो हर क्वेश्चन आंसर करता है, करने के बाद में उसका रिजल्ट देखता है, भी सच बोलने का रिजल्ट क्या है, झूठ बोलने का रिजल्ट क्या है, दोनों तराजू में तोल के देखता है किसमें कितनी पावर है, कितना दम है, सच में है क्या झूठ में है। तो दारा सिंह साहब ही झूठ बोल रहा है। और झूठ कौन बुला रहा है? जो आज के कमेटी मेंबर बने हुए हैं धुलिया में जबरदस्ती के। अभी 4-5 तो नाम सामने आए हैं, जुग्गी, मंगत सिंह शेरे पंजाब, और 4-5 और लोग हैं, और अमरीक सिंह और ये जिंदू आरसी वाला हरजिंदर सिंह डीडीआरसी होटल वाला, ये अमरीक सिंह, ये तो सब प्यादे हैं, कहीं पे भी रखो चला लो, जब जरूरत पड़ेगी तो काम ले लेंगे, नहीं तो बाहर फेंक दो जी, इनका काम हो गया, इनको तो यूज करना है। देखो, मेरा पर्सनली किसी से लड़ाई झगड़ा आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अगर कहीं गुरुद्वारा साहब की मान मर्यादा को भंग किया जाएगा तो रणबीर सिंह वहां पे चुप रहने वाला नहीं है। दुख लगता है, जिस फुलवाड़ी को हमने कई साल लगाकर संगत के सहयोग से तैयार किया है, उस फुलवाड़ी में अभी घास फूस जमा हो गया है और संगत ही उसको काटेंगी। आप देखते जाओ, संगत प्रॉपर उसको काट के बाहर निकाल के फेंक देंगी और सूखने के लिए छोड़ देंगी। तो झूठ ज्यादा चिर नहीं चलता है। और मैं दारा सिंह को बोलता हूं साफ साफ शब्दों में कि भाई, अगर तेरे पास सच है ना, अगर रणबीर सिंह मास्टरमाइंड है, तो सुबह जाके जो भी सीआईडी इंचार्ज मैडम है या वो बड़े ऑफिसर है, उनको दे दो भी रणबीर सिंह कातिल है, या फिर वहां पे गलती मान लो कि हमसे झूठ बोला गया है, संगत से माफी मांगो। और फिर दूसरा, आप दरबार में जाकर सफाइयां देते हैं, क्योंकि आप वहां पे सफाई क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे दरबार है हर संगत का, हर बंदे का। वहां पे आप तो देखो झूठे हैं, लेकिन संगत झूठी नहीं है, माइयां बच्चे झूठे नहीं है, पापी नहीं है, कपटी नहीं है, क्योंकि वो महाराज की मान मर्यादा को अच्छी तरह जानते हैं कि दरबार साहिब में झूठ कभी चलता नहीं। लेकिन आप दरबार में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली कीर्तन के बाद में पता लगा है, संगत में से किसी ने बताया है कि जी सफाइयां देता है वहां पे अपनियां। भाई, झूठे तो तुम है ना, रणबीर सिंह थोड़ा है। रणबीर सिंह तो आज भी आएगा धुलिया, फिक्र मत करो, टाइम थोड़ा ही है, आ जाएगा जल्दी। मेरे को जिला आउट इन्होंने इसके लिए करवाया कि अगर रणबीर सिंह धुलिया में रहा तो हमारा जो झूठ है ना, वो जल्द ज्यादा टाइम टेकने वाला नहीं है। और जो बुढ़ा था भूपेंद्र सिंह, अभी वो पापी बंदा पता नहीं संगत के दुफाड़ करके कहां भागा हुआ है। कहीं ना कहीं संगत जी, इनका स्वार्थ है झूठ बोलने का, और वो झूठ बोल के कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि संगत कामयाब कर रही है, बीबियां बच्चे कामयाब कर रहे हैं।
और दुख लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बीवियों और बच्चों का जो कोर्टों कचहरियों में कोई काम नहीं है, लेकिन भाइयों ने अपनी माताएं, बुजुर्ग माताओं, बीवियों, बच्चों को भी कोर्ट में भेजा रणवीर सिंह के खिलाफ। मेरा बीवियों से कोई या उन परिवारों से कोई वो नहीं है। और देखो आपको तो भेज दिया, इनकी क्या औरतें नहीं है क्या, इनके क्या बच्चे नहीं है, उनको कोर्ट में भेजते मेरे खिलाफ। आप परिवार हैं किसका, इनके क्या बच्चे नहीं है, सबके बच्चे हैं, वो क्यों नहीं गए, आपको भेज दिया और आप पीछे रहे। आप क्योंकि वो अपना चेहरा तो दिखाना ही नहीं ना चाहते, वो तो एकदम साफ चिट्टे होकर के घूम रहे हैं कि नहीं, ये हमारे जैसा तो कोई सेवादार ही नहीं है पूरे संसार में। अरे पापी लोगों, तुम्हारे से गंदा कोई दुनिया में नहीं है। और मैं जवाब देता हूं इस बात का, जो कल की वीडियो आई था, आज मेरा उसी पे थोड़ा सा भी उसको जवाब दूं मैं प्रॉपर पापी आदमी को, जो गुरुद्वारा साहब जी धुलिया के पीछे, दरबार साहब के पीछे एक वीडियो बनाकर और उसको फेसबुक माध्यम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो संगतों में झूठ को परोस रहा है जी। हम अपना वो झूठ बोले 100 बार बोले, हम 100 पे एक वीडियो बनाएंगे, तो डेली एक डाल, हम हफ्ते में एक डालेंगे। और जो तेरा झूठ है ना, उसको एकदम सच देखना कैसे झूठ झूठ पे भारी पड़ता है। और फिर जो गुरुद्वारा साहब जी धुलिया में आने की चाहत रखते हैं संगत, उनको आप धमका रहे हैं कि रणवीर सिंह के बंदे हो जी, अगर आए दुलिया में तो आपके बच्चे तक उठा लिए जाएंगे। क्या बात, तुम्हारे में दम नहीं है खुद में लड़ाई करने का? क्योंकि आप पापी हैं ना, पापी बंदा है ना, पापी पीछे से लड़ता है, चोर रात का फायदा उठाता है। हैं जी, वो चोर है आप, चोर। बिल्कुल मैं चोर शब्द कहूंगा इनके लिए। और सभी संगत से मेरी विनती है कि ये चोरों से सावधान रहो। अगर आज ये गुरुद्वारा बैठ के चोरी कर रहे हैं ना, जो सबसे उच्च स्थान है, पवित्र स्थान है, जो बंदा गुरुद्वारा साहब जी धुलिया का कब्जा लेने के लिए संगत जी 250-300 गुंडों का सहारा ले सकता है, तो वो बंदा कभी कुछ भी कर सकता है। आप इस पे विचार करो। आपको गुमराह किया गया है, आप ये गुमराह से बचिए, उन पापी लोगों को इनका असली रास्ता दिखाइए, जिस लायकी के ये हैं, इनको इनका असली घर दिखाइए। धन्यवाद। हुई भूल चूक की क्षमा। सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करो। धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह।